Welcome to lecture number 3 of statistics measure of dispersion. टॉपिक चल रहा है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यूस सीरीज में सारे वही फॉर्मूले और मेथड्स हैं जो डिस्क्रीट सीरीज में जैसे बताया था, बट दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, सीरीज एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, दूसरा मिड पॉइंट्स चाहिए हमें। तो लेट्स डू वन क्वेश्चन जिसमें हम एक्सक्लूसिव सीरीज में पहले कन्वर्ट करेंगे। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मेथड के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स मोर देन 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, number of students 100, 90, 75, 60, 50, 25, 15. I've skipped something, I guess. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 90, 75, 50, 25, 15, 5 and 0. Solution. सबसे पहले हमें इस डेटा को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज मोर देन सीरीज, सो इसको पहले कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, सो मोर देन 0, 0 से इंटरवल साइज शुरू होगा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, and then 60 to 70. You need not take more than 70 because more than 70 की फ्रीक्वेंसी 0 है। more than 70 की फ्रीक्वेंसी 0 है, तो अगर आप 70 to 80 लेना चाहें तो 0 के आगे लिख सकते हैं, बट दैट इज जस्ट मेयर टाइम वेस्टेज। $70 to $80 I am not writing because frequency is 0. Frequencies now minus करके you know how to convert more than series into the exclusive one. 10, 15, 25, 25, 10, 10, 5, 0. So by converting the exclusive series into the more than series into the exclusive one, we got the frequencies as 10, 15, 25, 25, 10, 10, 5. जैसे आपको बताया था कंटिन्यूअस सीरीज में हमें एक्सक्लूसिव सीरीज चाहिए,
Now we'll compute the mid values. 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65. अब हम मेथड की सिलेक्शन कर लेते हैं. We'll apply the step deviation क्योंकि कॉमन भी आ रहा है. So here using step deviation method, standard deviation is equal to sigma f d dash square upon sigma f minus sigma f d dash upon sigma f का होल स्क्वायर का अंडर रूट multiply by c. So first we'll take d. What is d? M minus a, and a is assumed value, assumed mean. assume कर लेते हैं 35, 5 minus 35 minus 30, 15 minus 35 minus 20, 25 minus 35 minus 10, 0 plus 10 plus 20 plus 30, m minus a. Now we'll take d dash. What is d dash? It is d divided by c, common factor, common multiple. What is the common multiple here? 10. अगर मिड वैल्यूज में कॉमन मल्टीपल है तो ऑब्वियसली d में कॉमन मल्टीपल आएगा. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. According to formula, we need fd dash square. So let's compute d dash square. 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. fd dash square. 10 into 3 minus 30, 15 into minus 2 minus 30, 25 into minus 1 minus 25, 25 into 0, 0, 10 into 1, 10, 10 into 2, 20, 5 into 3, 15. So fd dash 30, 30, 25 minus में 0, 10, 20, 15. Now fd dash square. 10 into 9, 90. 15 into 4, 60. 25 into 1, 25. 25 into 0, 0. 10 into 1, 10. 10 into 4, 40. 5 into 9, 45.
Let's take the summations now. This is 100. This is minus 40. This is 270. Let's put it into the formula now. 270 upon sigma f minus 40 by 100 का होल स्क्वायर अंडर रूट इंटू c. कॉमन फैक्टर इज 10. 2.7 minus 40 divided by 100 is 0.4. का स्क्वायर इज 0.16 into 10. 2.54 under root into 10. 1.59 into 10. 15.93. So the standard deviation is 15.93 units, which is nothing but marks. 6 mark a question it is. And this is how you are supposed to attempt. Take your 1 minute. ओके, दिस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूअस सीरीज. ये हमारी कंटिन्यूअस सीरीज कंप्लीट हो गई है. नाउ जैसे आपको बताया प्रैक्टिस से ही मार्क्स आने हैं. आई एम गिविंग यू 4 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस फॉर द कंटिन्यूअस सीरीज. द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस आर पेज 150, एग्जाम्पल 8, example 9 and page 151, example 10 and example 11. These are the questions for practice, 4 questions, and we are done with continuous series. नाउ जैसे हमने कंबाइंड मीन कंप्यूट किया था, ऐसे ही कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी कंप्यूट कर सकते हैं. मींस आपको जो डेटा गिवन होगा सीरीज में वो 2-3 सीरीज का गिवन रहेगा. आपको उसको यूज करके कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. द टॉपिक इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन. The formula for combined standard deviation is, I am taking 2 groups. Standard deviation of 1 and 2 group. 3 groups भी हो सकते हैं, 4 groups भी हो सकते हैं. I am taking 1 group, 2 groups here. N1 into standard deviation 1 का square means first group की number of terms and variance of first group plus second group की स्टैंडर्ड डेविएशन. अगर 3 ग्रुप होते तो N3 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 भी आ जाता, प्लस
n1 d1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर। अब ये d1 और d2 क्या है? दिस इज द डिविएशन टेकन फ्रॉम द मीन। आई रिपीट, दीज आर द डिविएशंस टेकन फ्रॉम द कंबाइंड मीन। होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 का होल अंडर रूट। Clear everyone? Now where n1 and n2 are number of items or terms in given series. When I say given series, I mean to say both the series. Standard deviation 1 and standard deviation 2 are the standard deviations of given series, and now this is important. D1 is combined mean minus first group mean, and D2 is combined mean minus second group mean. आप मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन या मीन 2 माइनस कंबाइंड मीन भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो स्क्वायर होके इग्नोर ही हो जाएगा। 2 माइनस 3 या 3 माइनस 2 आंसर सेम आएगा, फर्क आएगा माइनस का, वो स्क्वायर होके बाद में इग्नोर ही हो जाएगा, तो हार्डली मैटर्स। D1 एंड D2 रिस्पेक्टिव मीन माइनस कंबाइंड मीन और कंबाइंड मीन माइनस रिस्पेक्टिव मीन। कहने का मतलब है D1 and D2 are deviations of respective mean to या from, जिस मर्जी से माइनस कर देंगे, combined mean। अब एक क्वेश्चन करेंगे आपको चीज क्लियर एक्सप्लेन करने के लिए। प्लीज नोट डाउन द फॉर्मूलाज, टेक 30-40 सेकेंड्स, पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। Okay students, please move to the question now. Find combined standard deviation. Find combined standard deviation from the following data। आप देख सकते हैं हमें जो डेटा गिवन है वो दो ग्रुप्स में गिवन है, बॉयज एंड गर्ल्स में। द डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ 2 बॉयज एंड गर्ल्स। नंबर, देयर आर 30 boys and 20 girls. The average marks scored by boys are 20 and the average marks scored by girls are 30, and the standard deviation of 4 marks boys is 4 whereas girls is 5. अब ये नहीं ये 4 है ये 5 है तो एवरेज 4.5 आ जाएगा, नो। सॉल्यूशन,
किसी एक को फर्स्ट ग्रुप कर दो, किसी एक को सेकंड ग्रुप कर दो. से बॉयज आर द फर्स्ट ग्रुप एंड द गर्ल्स आर द सेकंड ग्रुप. And 1 is equal to 30 and 2 is equal to 20. Standard deviation 1 is 4, standard deviation 2 is 5. अब बात आती है मीन की. सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कंबाइंड मीन. सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम कंबाइंड मीन निकालना सीख चुके हैं. मीन 1 इंटू n1 प्लस मीन 2 इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. दिस इज हाउ वी कंप्यूट कंबाइंड मीन. 20 इंटू 30 प्लस 30 into 20 whole divided by 30 plus 20. This is how we compute combined mean. हम combined mean इसलिए निकालने हैं क्योंकि मुझे D1 और D2 निकालना है. Deviation 1, deviation 2. 600 plus 600 divided by 50. 1200 divided by 50, 24. Combined mean is 24. Now let's compute the combined standard deviation. No, उससे पहले हमें चाहिए D1 and D2. D1 and D2. What is D1? Combined mean minus the first group mean. D2 combined mean minus second group mean. D is basically deviation only. तो deviation D can be used in statistics as for deviation. किसी में से कोई वैल्यू माइनस करनी है. 24 minus 20, 4. 30 minus 24, 6. That would be 24 minus 30 is minus 6. Hardly matters क्योंकि स्क्वायर करना है तो माइनस इग्नोर ही हो जाएगा. Now let's compute the combined standard deviation. The formula for combined standard deviation is दो ग्रुप्स हैं, अगर तीन होते तो n 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर भी आ जाता. Put in the formula and get the answer. Note it down. You know how to compute board mass, how to apply board mass rather.
6.603 और जस्ट 6.6 सिंगल डिजिट तक हमें ज़रूरी होता है कंप्यूट करना. सो द कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 6.603. टेक योर 1 minute and complete the combined standard deviation. Right. Let's proceed with some theoretical concept of standard deviation. Please open page number 152, page number 152. What are the properties of standard deviation? Standard deviation की properties क्या है? Okay, जो हमने combined standard deviation करवाया वो एग्जाम में कम चांस होते हैं पूछे जाने के. ये हम इसलिए करते हैं ताकि आपको थियोरी में अगर फॉर्मूला है तो पता हो. MCQs ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग के केस में फॉर्मूला पूछा जाए एंड प्रॉपर्टीज के केस में. दैट इज वाई इसकी प्रैक्टिस कम ही रहेगी. 13th question, what are the properties of standard deviation? Number 1, standard deviation is the most popular measure of dispersion. Range, quartile deviation, mean deviation from mean, mean deviation from median, Lorentz curve and standard deviation. Standard deviation सबसे फॉर्मूला सबसे पॉपुलर है. When we say popular, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है कोई पॉलिसीज बनाने के लिए. जैसे क्रिकेट में डकवर्थ लुइस मेथड होता है और स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स में कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं स्पोर्ट्स में. वो डेटा स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करके ही डिसीजन लिए जाते हैं. 2, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन बट इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल. इसको आप दो अलग अलग पढ़ सकते हैं. इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन. एक सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 10. आप सभी वैल्यूज में 2 प्लस कर दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10 नहीं आएगा. आप सभी वैल्यूज में 2 माइनस कर दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10 नहीं आएगा. मींस अगर एक सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन 10 आ रहा है या वट एवर आ रहा है, आप उस पूरी सीरीज में कुछ प्लस कर दो या माइनस कर दो, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा. It is not affected by change in origin. It is affected by change in scale. You may proceed with the new property. एक सीरीज है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है whatever. आप उस सब में k से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी सीरीज को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो आ जाएगा whatever into 4. एंटायर सीरीज को 3 से डिवाइड कर दो तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता. मींस प्लस माइनस करो पूरी सीरीज में तो स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन सेम. स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल. पूरी सीरीज को आप किसी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन इंपैक्ट करेगा. Third, a distribution with lesser coefficient of variation shows greater consistency, homogeneity and uniformity, whereas a distribution with greater coefficient of
वेरिएशन इज कंसिडर्ड मोर स्कैटर्ड। इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अभी लेक्चर 4 में हमने करना है, बट वो स्टैंडर्ड डेविएशन का ही रिलेटिव मेजर है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज एब्सोल्यूट मेजर। तो मैं इसको इस तरीके से समझा रहा हूं, अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है तो सीरीज वेरी कर रही है, अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है तो सीरीज वेरी कम कर रही है, मतलब सीरीज कंसिस्टेंट है। जैसे कि दो प्लेयर हैं, एक प्लेयर, क्रिकेट की बात करते हैं, एक प्लेयर 30 स्कोर करता ही करता है, 30 to 40 स्कोर करता है, और दूसरा प्लेयर कभी 10 स्कोर कर रहा है, कभी 60 स्कोर कर रहा है, कभी 12 स्कोर कर रहा है, कभी 90 स्कोर कर रहा है। सो द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन इज मोर कंसिस्टेंट, लेस वेरिएबल, उसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगी। एंड द सेकेंड पर्सन इज मोर स्कैटर्ड, मोर वेरिएबल, लेस कंसिस्टेंट, उसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आएगी। दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर 2 or more groups it is possible to measure combined standard deviation। आप देख सकते हैं हमने combined standard deviation कंप्यूट की है, it is possible। क्वेश्चन नंबर 14th, what is the formula of combined standard deviation? तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। If there are 2 groups containing n1 and n2 observations, mean 1 and mean 2 are respective arithmetic means, s1 and s2 are respective standard deviations, then combined standard deviation is, c means combined, हमने 1 2 लिखे, इन्होंने c लिखा हुआ है, n1 into standard deviation 1 का square plus and so on, where d1 and d2 are the differences between individual mean and combined mean from series 1 and 2 respectively. I hope you are clear with this. This is combined standard deviation and continuous series. We are complete with that. We have completed. In lecture number 4, we'll do the relative measure, that is coefficient of variation. Bye bye. Take care. God bless.